Hello, 10th graders. We are beginning with the new topic of chapter 2 chemistry, that is acid, bases, and salts, class 10th. And we are here on the topic salts. In my previous videos, I have already covered acids and bases. So, what are salts, children? Is it the same salt that increases the taste of your food? Is it the same salt that's present in your toothpaste? Is it the same salt that is there in your washing powder? Absolutely right. These all are the same salts. So, what is basically salt? Technically, salt is a compound formed of an acid by the replacement of hydrogen ions in an acid by a metal. जब भी किसी एसिड में से मेटल एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है, दैट कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल कंपाउंड बनाता है, उस केमिकल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स. सो बेसिकली सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ऑफ एसिड्स and bases, and thus along with salt water is also formed. So such kind of reactions, you already know if you have watched my previous video, such kind of reactions are known as neutralization reaction. But here there is a catch. Does all the salts formed during this reaction are neutral salts? No, children, absolutely not. So salts can be neutral, salts cannot be neutral. So salts can be acidic, salts can be बेसिक एंड सॉल्ट्स कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल. अब हमें कैसे पता चलेगा कि when the which salt will be acidic, which will be basic, and which will be neutral? So let's find out. We'll come to know by the process which is known as hydrolysis of salt. So in hydrolysis of salts, basically salts breaks down the water molecule and thus while forming corresponding salt, we figure out that which acid or which base it is made up of. So with this we come to the four families of salt. So आप वो four families one by one मेरे साथ समझेंगे इस वीडियो में. So what is it, children? The first family is strong acid and strong base. Right? Strong acid and strong base forms a neutral solution. अब ये कैसे डिसाइड होता है कि न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है? जब आपके एसिड और बेस का स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम होता है और बहुत क्लोज होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड द सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन. So here let's check out the strong acid. The strong acid is HCl and the strong base is NaOH. So you know the basic ionization, H plus Cl minus Na plus OH minus, thus forming NaCl, a neutral salt, because here hydrochloric acid is a mineral acid and mineral acids are always strong acids. Sodium hydroxide is again a strong alkali, thus forming sodium chloride. So यहाँ पे दोनों acid और base का strength same है, इसलिए salt solution कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं. The next category is of strong acids and strong bases. So strong acids and weak base. अब strong acid और weak base का क्या मतलब है? Strong acid मतलब acid का strength ज्यादा है और base का strength कम है. इसका क्या मतलब होगा? They will be having more of hydrogen ions and lesser of hydroxide ions. राइट right? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है? व्हेन इट विल डिसएसोशिएट, व्हेन इट विल आयनाइज, इट विल फर्निश मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. राइट. अब वीक बेस है, तो जब ये आयनाइज होगा तो ये कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा. व्हेन So the concentration of hydrogen ion is more than the concentration of hydroxide ions. तो जब concentration hydrogen ions का ज्यादा होगा, तो the salt solution will be acidic salt solution. So strong acid weak base makes acidic salt solution. So here children, H2SO4 which is sulfuric acid, ये एक strong acid है. Magnesium hydroxide जो milk of magnesia का suspension बनता है to cure acidity, और जो हम consume कर पा रहे हैं तो obviously that's a weak base. So here children we have strong acid and weak base. अब strong acid का क्या मतलब है? It is going to furnish more of hydrogen ions. Weak base का क्या मतलब है? Comparatively hydroxide ions कम होंगे. So जो salt solution बन रहा है वो एक acidic salt solution बनेगा और water तो produce होगा ही होगा.
नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब आप खुद से सोचो, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए, बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए. अब बेसिक क्यों है? वीक एसिड है तो लेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस फर्निश होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है तो मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस बनने वाले हैं. सो हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जब हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होता है तो जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है सब्सटेंस का, वो कैसा होता है? बेसिक, राइट? So here we have taken acetic acid CH3COOH and potassium hydroxide. अगर हम यहाँ पे acetic acid ले रहे हैं तो acetic acid को आप कैसे आयनाइज करेंगे? CH3COO minus and H plus. So and here also K plus and OH minus, right children? So CH3COO minus is acetate ion and this is K plus. तो usually बच्चों को confusion रहता है कि जब भी हम कोई compound बनाते हैं we always place the cation first then anion. But इसके केस में आप दोनों चीजें कर सकते हो, आप cation को पहले भी लगा सकते हो और cation को बाद में भी लगा सकते हो. Both the ways it is acceptable. So here we are having potassium acetate. The name of the salt formed is potassium acetate and the nature of the salt will be basic. इस salt का nature क्या होगा? Basic. And ये एक acid और base reaction है, neutralization reaction है, तो water will definitely be formed. Now if we are talking about the fourth family, right, the fourth category, so that's again of the same strength. We are having weak acid and we are having weak base. So when weak acid is reacting with weaker base, so equal amount of hydrogen ions and equal amount of hydroxide ions will produce, right? So they will neutralize each other effect and the salt solution which is formed, that will be neutral salt solution. So कैसे salt solution produce होगा? Neutral salt solution. So इस slide में हमने क्या समझा है बेटा? We have understood about the family of salt, in which we have learned that the salts can be of acidic nature, the salts can be of basic nature, and the salts can also be of neutral nature, right? अब acidic nature कब होगा? जब strong acid weak base लोगे. basic nature कब होगा? जब strong base weak acid लोगे. और neutral दो cases है हमारे पास, जब उन दोनों का strength same होगा, या तो दोनों acid base strong होंगे या दोनों ही acid और base weaker होंगे. So in that case, though you will get neutral salt solution. So I hope you are now clear with the family of salts. Now we'll have an hands-on practice. I'll get you some list of salts and जिससे आप practice करेंगे. So we have the family of salts. ठीक है? अब हमारे पास कुछ salts हैं. We have potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium carbonate, ammonium chloride. So I've got some list of acids for salts for all of you. So by knowing the parent acid and parent base. अब ये parent acid और parent base क्या है? Means which acid and base chemically combine together to give you this salt. So उसको हम parent acid और parent base बोलते हैं. तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, हर चीज याद करने वाली नहीं होती, मैक्सिमम चीजें समझने वाली होती हैं. So we have potassium sulfate. आपके पास कोई भी सॉल्ट है, आप उसमें H प्लस लिख दो नीचे और OH माइनस लिख दो. ठीक है? अब आप जस्ट क्रॉस कर दो और उनको केमिकली कंबाइन, उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बना दो. So we have potassium hydroxide KOH and we have H2SO4. So now you know the strength. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, माय बैड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. So जब दोनों का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा होगा? द सॉल्ट विल बी न्यूट्रल. अब सोडियम सल्फेट सिमिलरली करोगे. सोडियम सल्फेट किससे बना होगा? आपका H2SO4, राइट, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो आप इसको भी ऐसे करके देख सकते हैं. वी हैव Na2SO4. आप इसके नीचे सिंपली क्या लिखेंगे? H प्लस OH माइनस. आप क्रॉस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस. सो पेरेंट बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पेरेंट एसिड इज H2SO4 which is a strong acid because this is a mineral acid, children. So अब हमें क्या बहुत easy हो गया ये आपके लिए समझना.
So strong acid, strong base, that will be neutral. Similarly, calcium hydroxide, high sulfuric acid. Calcium hydroxide एक weak base है, sulfuric acid एक strong acid है. तो यहाँ पे कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. सो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्ट का जो नेचर निकल के आएगा दैट विल बी एसिडिक. Magnesium sulfate, that is a magnesium hydroxide and sulfuric acid. Again, magnesium hydroxide एक weaker base है और sulfuric acid एक mineral source acid है, तो ये एक strong acid है. So weak base, strong acid, acidic salt. Copper sulfate, copper hydroxide and sulfuric acid. Copper hydroxide एक weak base है. This is a stronger, so acidic salt. Sodium chloride, sodium hydroxide, HCl, both are strong, so the acid will be neutral. Now sodium carbonate, sorry यहाँ पे formula गलत हो गया children. Sodium carbonate is Na2CO3. So ये किससे form हो रहा है? अब इसको आप समझेंगे. This is different family, Na2CO3. So टेक्निक विल रिमेन सेम, H प्लस OH माइनस. तो आप बना देंगे क्रॉस करके, क्या हो जाएगा? NaOH and that will be H2CO3, right? So this is a strong base and this is a weak acid. अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाली फैमिली में से है. सो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सॉल्ट कैसा होगा? दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट. सो सोडियम कार्बोनेट हम किस में यूज करते हैं? दिस इज अ वॉशिंग सोडा. दीज आर यूज इन डिटर्जेंट्स. सो जो मम्मा वो क्लोथ्स वॉश करती हैं, लॉन्ड्री में डालती हैं, आपके डिटर्जेंट्स में यही वाला सॉल्ट रहता है. अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम क्लोराइड में भी आप कर सकते हैं. सो दैट इज NH4OH जो एक वीक बेस है, right? And HCl, HCl एक strong acid है. So this is a strong acid, children. So the nature of the salt will be acidic, right? So here we have learned that here we all have learned that we can even know the nature of the salt by knowing the parent acid and parent base. अगर हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नेचर पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस सॉल्ट, उसके बेबी सॉल्ट का नेचर क्या होगा. विल इट बी न्यूट्रल, विल इट बी बेसिक और विल इट बी एसिडिक, right children? So I hope you are thorough with the family of salts. Now we'll start learning about the preparation of salts. अब हम कुछ chemical salts हैं आपके syllabus में, हम उनका preparation सीखेंगे one by one. So the very first salt you need to learn is your table salt, common salt or sodium chloride, right? It is the same salt that enhances the taste of your food. So here children, when we are talking of this salt, so it can be prepared by two ways. One is the laboratory preparation, जो हम यहाँ सीख रहे हैं, and one it is a sea salt. It is formed by the evaporation of sea water, right? And it is also found in certain rocks. So कुछ इसके portions हम rock salt भी बोलते हैं इसे. And laboratory में हम इसको कैसे prepare करेंगे? This we are going to talk. So here we are going to take sodium hydroxide and hydrochloric acid. Sodium hydroxide को हम commonly caustic soda भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, right? This is known as caustic soda, right children? And hydrochloric acid. अब आप देख रहे हैं इससे क्या बन रहा है? Sodium chloride. So when we chemically combine sodium hydroxide in hydrochloric acid, what do we get? We get neutral salt or sodium chloride and water is formed along. So this used in our pickles में हम क्या डालते हैं? Why your mother adds salt in the pickles? Because it acts as a food preservative. It keeps the food for longer time. It is a flavor enhancer also. It increases the palatability of the food, right? It is also put over the ice to keep the ice intact in the snowy areas where there is lot of snowfall. So with this we have learned about the formation of common salt in the laboratory. So ये बहुत simple सी चीज है that we have to understand. So common salt हम कैसे prepare कर रहे हैं? We are just, this is a white color powder. It is prepared. क्या हम laboratory में सच में ऐसे prepare कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. आप simple, अगर आप इसको घर पे भी try करना चाहते हो, आप hydrochloric acid और sodium hydroxide को mix करो, you'll get the solution of sodium chloride. And this is soluble in water, तो आपको एक colorless solution मिलेगा. If you let that water on
some heat and you let it evaporate, what will you get in the end? You will get the crystals of sodium chloride, right? So yes, children, this can be prepared in the laboratory, but laboratory preparation is just for the testing purpose, not for the commercial use. हम जब भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत सारे अमाउंट में प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट? यू कैन टेल नाउ. द पेरेंट एसिड इन्वॉल्व्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द पेरेंट बेस इन्वॉल्व्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड. सो दिस इज stronger acid, this is a stronger base, so the nature of the salt will be neutral. Now let us move forward towards the next chemical salt, that is your sodium hydroxide. इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? We also call it caustic soda commonly. अब हम caustic soda कैसे बनाने वाले हैं? हम sodium hydroxide कैसे बनाने वाले हैं? पहले हम ये देखते हैं. So we have to take brine for this. Now what is brine? Brine क्या होता है? ये समझते हैं. Brine is a cold and concentrated solution of sodium chloride. ब्राइन क्या है बच्चा? इट इज कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो आप ऐसे ही बस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके नहीं कर सकते हो. यू हैव टू टेक इट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड से भी, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट सर्टेन थिंग. कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है? मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें सोल्यूट का क्वांटिटी अच्छा खासा हो, and you have to keep it in refrigerator. So when it become cold and concentrated, then you specifically call it brine. So what you have prepared for yourself, that is brine. अब brine के साथ हम क्या करेंगे? We are going to electrolyze it. राइट. ब्राइन को हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोलिटिकली ट्रीट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक अ ब्राइन इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. सो वी आर हैविंग एनोड एंड कैथोड. मैं दोबारा से 10th क्लास रिवाइज करवा दूं. कैटायंस गोज टुवर्ड्स कैथोड, सो कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, राइट? And anions goes towards anode, so anode is always positively charged. तो इसमें थोड़ा सा एरर आया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे. The small terminal reflects this is the small one, so this is the negative terminal and this is a positive terminal. So cathode is negative electrode and anode is positive electrode. राइट चिल्ड्रन. अब होगा क्या? जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इट विल स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू आयंस. इसमें से आयंस फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन में, Na+ and Cl-. सो वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो सोडियम आयंस किसके पास जाएंगे? इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड. और क्लोराइड आयंस किसके पास आएंगे? इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग टुवर्ड्स द एनोड. सो क्लोरीन आयंस कलेक्टिवली फॉर्म व्हाट? It starts forming the chlorine gas. So chlorine gas कहाँ पे evolve होगी? At your chlorine gas is evolved where? At your anode, because anode क्या है? Positive electrode है. और chlorine gas कौन से आयन से बनती है? Negatively charged. तो opposite charges attract each other. समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, right? So chlorine gas कहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट होगी? एनोड पर. हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट होगी? कैथोड पर. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस किससे बनती है? हाइड्रोजन आयन से. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर इज इंटेंस एनर्जी, सो उसमें आपके हाइड्रोजन आयंस भी आएंगे, आपके क्लोराइड आयंस भी आएंगे, सोडियम आयंस भी आएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी आएंगे. सो सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड विल स्टार्ट फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट व्हिच इज अ कास्टिक सोडा. अलोंग विद दैट क्लोरीन इज फॉर्म. अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है. अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? दिस वर्ड क्लोर हैज कम फ्रॉम क्लोरीन, क्योंकि इस प्रोसेस के टाइम पर क्लोरीन गैस भी साथ में इवॉल्व होती है. सो वी आर calling it chlor. And since sodium hydroxide is being formed, so sodium hydroxide क्या है? ये एक water soluble base है, ये एक alkali है. So alkali और इसमें क्लोरीन गैस दोनों फॉर्म हो रही हैं, इसीलिए आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अब जरूरी नहीं है कि वो आपको बोल दे कि भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बन रहा है. सो क्लोर एल्कली प्रोसेस में वो आपसे पूछेगा व्हाट इज कलेक्टेड एट एनोड और व्हाट इज कलेक्टेड एट
कैथोड। तो यू शुड बी नोइंग, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें क्लोराइड आयंस ब्रेक होंगे, सो क्लोराइड आयंस कहाँ फॉर्म होते हैं, यू टेल मी। क्लोराइड आयंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, वो कहाँ जाके कलेक्ट होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। और जो सोडियम आयंस है वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, राइट। सो you will be able to answer such questions very easily if you know everything right way. So हाइड्रोजन गैस कहाँ इवॉल्व होगी, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कहाँ इवॉल्व होगी, आपकी एनोड पर। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो फार वी हैव कवर्ड टू सॉल्ट्स। हमने कौन कौन से दो सॉल्ट्स किए, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने सोडियम क्लोराइड किया है और हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किया। सो सोडियम क्लोराइड बनने में सोडियम हाइड्रोक्साइड हेल्प कर रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। सो इजंट इट फनी एंड स्ट्रेंज, राइट? That's absolutely right. So both are helpers and creators of each other. So with this, we have finished the two salts among all. Now we are moving on to the next one. अब हम next salt करते हैं बच्चा. The next salt is washing soda, which is sodium carbonate decahydrate. It is formed by Solvay process. अब इसमें क्या हो रहा है इसको समझते हैं. अब ये एक step में बन के नहीं आ रहे हैं. You have to devote time, you have to spend lot of energy to produce it. अब इसका भी starting, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप पहले हमने सोडियम क्लोराइड सीखा, अब आगे के आप जितने भी सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनमें से मैक्सिमम सॉल्ट्स किससे फॉर्म होते हैं, कॉमन सॉल्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉमन सॉल्ट सिर्फ आपके किचन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सॉल्ट और हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी हमने ब्राइन प्रिपेयर किया था, यहाँ पर भी हमें ब्राइन चाहिए। सो नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बच्चा, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सॉरी सोडियम क्लोराइड। cold and concentrated solution of sodium chloride is brine. Now brine is reacted, अब हम क्या कर रहे हैं, brine is reacted with ammonia, में brine को अमोनिया गैस से पास करवाना है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करवानी है। तो सोडियम क्लोराइड तो आपका brine कहाँ है, here is your brine, sodium chloride and water is your brine, right? And what are we passing, we're passing two gases, ammonia gas and the carbon dioxide gas. So when you pass two gases you get sodium hydrogen carbonate, जो एक स्पैरिंगली सोल्यूबल है, जो स्लाइटली सोल्यूबल है, ये पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। एंड अलोंग विद दैट अ सब्लाइम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, राइट? सो अब आपके पास क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दैट्स नथिंग बट बेकिंग सोडा, राइट? ये कुछ भी नहीं है। तो अब आप वॉशिंग सोडा बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले आपने क्या बना दिया है, बेकिंग सोडा। तो आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज कितनी चेंज हो गई हैं। बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक योर केक फ्लफी, बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक योर पकौड़ा क्रिस्पी। सो as the chemical compound changes, its properties also changes. तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, what we have done in the first step, हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सबसे पहले, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, सबसे पहले वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, उससे कार्बोनेट बनेगा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, we have to pass two gases from sodium chloride, that is ammonia and carbon dioxide. So अब this is partially soluble, this is slightly soluble. So we are going to do three things with it. Since it is partially soluble in water, so we are going to filter it. But still it has some water molecules, so we are going to dry it via heating. So हम इसको फिल्टर करके ड्राई कर देंगे हीट करके। अब हीट करने से क्या होगा, इट इज गोइंग टू डीकम्पोज, ये स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट विच इज नोन एज सोडा ऐश, एंड दिस इज एनहाइड्रस। ये क्या होता है, एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब इट इज नॉट हैविंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। सो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट है भाई, वी नो द कॉन्सेप्ट, जब भी कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व होगी, बट हमें पता है कि इसमें क्या बन रहा है, Na+HCO3-। सो हाइड्रोजन और कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन हमेशा CO2 और वाटर बनाते हैं। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक और बेसिक को अपने कनेक्ट करते जाओ। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वी आर हैविंग, फर्स्ट स्टेप में हमने ब्राइन लिया, ब्राइन में से अमोनिया गैस पास करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करवा दी, तो हमें क्या मिल गया, वी गॉट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हमें अमोनियम क्लोराइड मिल गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने फिल्ट्रेशन किया,
क्यों कर पाए हम फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये पार्शली सोल्यूबल था, तो हमने उसको फिल्टर करके सेपरेट किया, बट हम इट वाज अ सॉल्यूशन, तो वो थोड़ा सा वेट होगा क्योंकि उसमें अमोनियम क्लोराइड के ट्रेसेस होंगे, तो उसको ड्राई करना और हीट करना बहुत जरूरी है। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है, तो वो के हीट करने से वो ऑटोमेटिकली उससे अलग हो जाएगा, बिकॉज इट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। सो अब हीट करने से क्या, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप हीट करोगे, आपने ड्राई किया, अब आप हीट कर रहे हो, हीट करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, किसमें हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। एंड जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है दैट इज एनहाइड्रस फॉर्म, और ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? We call it soda ash and we call it anhydrous form, right? And anhydrous salts are always colorless, ये भी ध्यान रखना है। अब anhydrous sodium carbonate dissolved in water और recrystalline, because washing soda sodium carbonate नहीं है, washing soda is your washing soda is sodium carbonate decahydrate, right? So washing soda is not just sodium carbonate. So you need to add 10 molecules of water, right? So we are going to dissolve it in water. So it will get recrystallized. अब जब वो recrystallize होगा, it will form a complex which is known as sodium carbonate decahydrate, and that's what is washing soda. ये क्या है? Washing soda. So with this we have covered washing soda. It is always prepared in 3 steps. अब ये ध्यान रखना है, अगर ये एग्जाम्स में आएगा तो आपको तीनों स्टेप्स देंगे. First is reaction of brine with ammonia and carbon dioxide. Second is filtration, drying, and followed by heating to decompose sodium hydrogen carbonate. Third one is recrystallization, right? So in 3 major steps, we are good to prepare our washing soda. Now moving on to the next one, that is your baking soda. Baking soda, washing soda करते करते हम समझ चुके हैं, because the very first step we did in washing soda is the preparation of baking soda itself. हमने क्या किया था? हमने ब्राइन किया था और हमने ब्राइन को रिएक्ट करवाया था अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. सो हमें क्या मिल गया था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा, स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, राइट? डिजोल्व हो जाता है. आपके घर में सोडा होगा, जस्ट टेक दैट सोडा एंड पुट इट इनटू वाटर. आप देखोगे वो एकदम से मिक्स नहीं, डिजोल्व नहीं होता, बट इफ यू पुट इन एफर्ट्स तो फिर वो डिजोल्व है. सो इट्स पार्शियली सोल्यूबल एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म. सो हियर इन दिस स्टेप वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट चिल्ड्रेन? But this we have covered our baking soda preparation, but where it is used for? Baking soda के बहुत सारे uses हैं, because it is a non-corrosive mild base, right? And it is also used for aeration in the doughs, right? आप इसमें baking soda, जैसे मम्मा is preparing a भटूरा dough, तो उसमें मम्मा थोड़ा सा सोडा ऐड करती है. क्यों ऐड करती है? क्योंकि जब वो हीट अप होता है, जब उसको एक वार्मथ मिलती है, तो वो हीट होने की वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसमें ब्रेक हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट. अगर हमने पीछे वाला स्टेप देखा होगा, right, in washing soda, so here sodium carbonate splits into carbon dioxide and water, and carbon dioxide is responsible for adding the aeration to the dough. It helps to make the pakoras soft, at the same time it makes it crispy. It is also responsible to make your cake dough fluffy. Even dhoklas also we put baking soda. तो जो भी फूड वाली आइटम आपको फ्लफी दिख रही है, उसमें मास ऐड नहीं हुआ बट वॉल्यूम ऐड हो गया है, be it anything, that is the superhero behind it is baking soda. Right, children? Now moving ahead to the next one, that is bleaching powder, which is responsible for decolorization. अब अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर क्या कर रहा है? डीकलराइजेशन कर रहा है. सो ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ब्लीचिंग पाउडर क्या है? केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2. अब ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? वी आर यूजिंग स्लेक्ड लाइम, दैट इज लाइम वाटर. Whenever we pass chlorine gas through lime water, it forms calcium oxychloride and water is formed along. Right, children? So with this reaction, we are successfully preparing bleaching powder, that is calcium oxychloride. And during it gives a strong smell of chlorine and it is highly soluble in water. So moving ahead to the next chemical salt, that is plaster of Paris.
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको पता है, वेन एवर वी गेट इंजर्ड और एनीबडी गेट द फ्रैक्चर्ड बोन, so that can be settled down with plaster of Paris because of its special properties. It settles down, right? It gets as hard as a cement on adding water to it. So plaster of Paris chemically क्या है? It is nothing but calcium sulfate hemihydrate. अब यहाँ पे hemi का क्या मतलब है? Hemi means half hydrate, right? Hemi means half hydrate. So how are you going to prepare it? So we are having a compound which is known as gypsum. Gypsum is nothing but calcium sulfate dihydrate. Di का मतलब होता है 2, hemi का मतलब होता है half. So you have to heat it exactly to 100 degrees Celsius, that is 373 Kelvin. अब ऐसा करने से क्या होगा? It is going to take away 3/4 water molecules from calcium sulfate dihydrate, and what are you left with? You are left with half a molecule. So here children, 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जाने से सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे. सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को एग्जैक्टली, तो इट हैज अ स्पेशल टेम्परेचर कंडीशन. ये आपको ध्यान रखनी है. अगर आप टेम्परेचर कंडीशन इस रिएक्शन को लिखते टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो टीचर में डिडक्ट मार्क्स, राइट? ऊपर नीचे करोगे तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इट विल नो मोर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ बीइंग 10th क्लास स्टूडेंट रीडिंग चैप्टर 2 केमिस्ट्री, अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी. जस्ट बाय चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड ऑल्सो चेंजेस. अगर जैसे ही केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं. तो अब अगर इसमें से हाफ मॉलिक्यूल निकल गया तो राइट 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक व्हाइट कलर का पाउडर है. इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड मास बना लेता है ऑन वेटिंग इट विद वाटर. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिप्सम जो है वो एक बहुत हार्ड है. अब आप इसमें वाटर डालोगे फिर से जिप्सम बन जाएगा एंड इट सेट्स एज अ हार्ड मास, एंड दैट हेल्प्स us to fix the bones by putting a plaster over it, and that is also used to make the sculptures. बहुत सारे sculptures, even the false ceiling decoration is done using POP. आपने सुना होगा, right? POP जो होती है false ceiling पर. So वैसे false ceiling is all POP. So POP stands for plaster of Paris. So they use a substance plaster of Paris to decorate the ceiling of a house, and they mix it with water. On mixing it with water, it turns into a gypsum, which is a hard mass. So I hope this is revised for all of you and you have done it well. Now we'll understand the very important topic. It is the last topic of the chapter, children, that is water of crystallization. Why water of crystallization is so very important and what it is exactly. अब water of crystallization की अगर हम बात करते हैं, it is a fixed number of water molecules present in any compound, any salt, right? अब अगर किसी सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इट हैज अ डेफिनाइट नंबर, एंड यू नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द शेप एंड कलर टू द गिवन सॉल्ट. अब क्रिस्टल्स बनाने में भी क्या हेल्प कर रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सॉल्ट को क्या मिल रहा है? उनका शेप और color, right? What does the salts get because of water molecules present into them? Their shape and color. So water get chemically combined in the fixed proportion, giving to the giving shape and color to the given chemical salt. So here copper sulfate pentahydrate. पेंटा का क्या मतलब है? 5 molecules of water. अब आप ये बात समझेंगे यहाँ से भी, इफ मैं राइटिंग CuSO4, अगर आपके पास आया एनहाइड्रस CuSO4 और यहाँ फिर आपके पास आया है CuSO4.5H2, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस विल हैव ब्लू कलर बट दिस विल बी एनहाइड्रस. ये क्या होगा? एनहाइड्रस. तो इसका क्या मतलब है कि जो एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं दैट आर कलर्ड सॉल्ट्स. तो जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को स्ट्रांगली हीट करते हो तो क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स टर्न एनहाइड्रस एंड दे टेंड टू लूज देयर कलर. एंड बाय एडिंग वाटर द टू प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल. आप एक सॉल्ट को हाइड्रेट भी कर सकते हो और हाइड्रेट
हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करके आप उसको एनहाइड्रस भी कर सकते हो. हाइड्रेशन पर द सॉल्ट विल गेन कलर and upon anhydration the salt will lose color. So here I have put some examples for all of you. For example, we are having copper sulfate pentahydrate which is aqua blue in color, sodium carbonate decahydrate that has having 10 molecules of water, right? Sodium carbonate जो होता है वो white color का होता है. Calcium sulfate dihydrate, right? Calcium sulfate dihydrate is again having a fixed water molecule. Ferrous sulfate hepta मतलब 7 molecules, right? Hepta का क्या मतलब होता है? 7 molecules. So it is greenish in color. तो अगर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है तो वो ग्रीनिश नहीं होगा, वो कलरलेस होगा. और अगर वो हाइड्रेटेड है, ग्रीन कलर का है, तो वो डेफिनेटली एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा. So with this we are over with the chapter of acid, bases and salt. I have explained you all the things very well. So in next video I will be getting some Q&As for all of you to practice on this and learn it well. And learning के साथ साथ understanding is very important, children. जब तक आप चीजें समझ के अप्लाई करना नहीं सीखोगे, the time has gone, वो टाइम चला गया जिसमें बच्चे 4-5 चीजें करके अपना काम चला लेते थे. थोड़ा सा सिलेबस बैक ईयर्स के पेपर देख के हमारा काम चल जाता था. But as a teacher, as an experienced teacher, I'm taking batches from last 20 years physically. So I can easily tell you the competency level is increasing and I'm appreciating CBSE efforts for the same. आप concept को समझो, समझने के बाद आप उसको prepare करो. The first is understanding, second one is preparation and third one is application. तो बच्चे समझते हैं, बच्चे लर्न भी करते हैं, बट बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है? एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, आई विल बी गेटिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू. उसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, असर्शंस होंगे, और इस बार मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड भी लेकर आऊंगी जिससे आपको समझ आए, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. टिल देन बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर. थैंक यू.